Good morning, everyone. My name is KS Deepak, and on behalf of Sheila IAS, I welcome you all for today's news analysis. So today, आज हम लोग 25th जुलाई का जो हिंदू न्यूज़ एडिशन है, particularly the Delhi edition, we will be explaining some of the articles which has been there in the newspaper. Okay. So starting with the ministerial conference 12. Which is the highest decision making body of WTO. उसमें जो outcomes है उसके ऊपर एक author ने काफ़ी डिटेल में उस पर बात की है, so we'll be talking on that. And secondly, we will be moving to the digital layers of indigeneity. So here the author has tried to tell what are the issues of digitization. So we would have a brief look on that also. And the next two articles are the India's investment-led revival, and fourth, the rule of law. So I would be trying to explain the first two articles, which I believe are more important than the other two. So we'll be seeing the outcomes. We will be seeing how the author has tried to explain those things. So with that, let's start with the first article. So MC12 over its gains for the developed world. Now over the years काफ़ी डिबेट में रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, दे जनरली टेंड टू फेवर डेवलप्ड कंट्रीज ओवर डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, और यही टेंडेंसी और यही बैकग्राउंड में ये आर्टिकल लिखा गया है. The author tries to prove the point that why these organizations or the details or the results of these organizations are in favor of developed economies rather than it should be in the favor of developing economies, right? तो उसे देखने के लिए first let's have a brief introduction कि क्या था और क्यों था, कैसे आया. Okay, so पहले हमें पता है we had a bloody World War I 1914-1918 में. Then World War II हुआ. It ended with the bombings of Hiroshima and Nagasaki. And World War II में जितने भी destructions हुए, to mitigate the destructions, to have a post-World War peace society, what they did is the making of United Nations and Bretton Woods institutions. Now Bretton Woods is actually a place, वहाँ पे एक conference हुआ and वहाँ से दो organizations निकल के आए. So one was IMF, International Monetary Fund, and second one was World Bank. इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन से हमें निकल के आया वी हैड गैट. नाउ गैट इज बेसिकली इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट. गैट इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स. इट्स अ सेट ऑफ मैकेनिज्म फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड. Okay, it was an agreement between the countries. It's not an institution. Be clear on that. GATT over the years develop हुआ. उसके बाद we had International Trade Organization. Now International Trade Organization काफ़ी और डिबेट्स हुए International Trade Organization में. उसके बाद हवाना चार्टर जिसे कहते हैं वो आया और वहाँ से हमें International Trade Organization का we had the formation of International Trade Organization back in 1948 to be specific. Then again International Trade Organization काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा. देयर वर सम इश्यूज इन दैट, कुछ कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया और इस इश्यूज़ के कारण वी हैड द उरुग्वे राउंड जहाँ पे फर्दर डिस्कशंस हुए एंड वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ WTO. इट वाज द रिजल्ट ऑफ Marrakesh Agreement. Marrakesh Agreement. Now remember, it's agreement, it's not accord. Okay, there is a difference between agreement, accord and treaty. So be particular on that. Marrakesh Agreement की वजह से we had WTO. अब देखते हैं कि WTO में क्या क्या issues रहे हैं. तो WTO में over the years a lot of issues has come up and as of now for the sake of timings we won't be able to cover all of them in this view, but again the basic structure of the issues, the basic issues we will be covering here. So starting with ट्रिप्स. सो आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन देयर. सो हाउ डू दे कम इनटू डिस्कशंस, हाउ डू दे कम इनटू द डिसीजंस दैट दे टेक. सो व्हाट दे डू इज दैट दे हैव अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC जिसे एब्रीवेट करके कहते हैं MC, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस.
ये साल में 2 बार होता है एंड इट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO. अब ओवर द ईयर्स यहाँ दिस MC provides an forum for all the members to discuss their issues, to term their proposals, how do they want to reform this, all those things, all those discussions comes into play in the MCs, in the ministerial conference. Along with that, यहाँ पे we have general council also. जैसे UN का we are having an UN General Assembly, WTO का भी we are having an General Council. Now General Council में भी सब लोग बैठते हैं. There are specific bifurcations in that. There are specific councils. For example, one of the council is for TRIPS. जनरल काउंसिल के अंदर एक सब कमेटी है, एक सब काउंसिल है जो कि पर्टिकुलरली ट्रिप्स पे काम करता है. नाउ व्हाट इज दिस ट्रिप्स? सो ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ व्हाट आर दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वी जनरली प्रोवाइड बेसिक प्रोटेक्शन टू दैट टेक्नोलॉजी फॉर preserving the novelty of the technology, and that type of protection is known as intellectual property rights. जैसे कि copyrights हो गया, trade marks हो गए, patents हो गए, ये सब intellectual property rights के अंदर आते हैं. अब what is the issue with TRIPS is that TRIPS में India और South Africa जो we generally say it as in South-South cooperation. For example, अगर आप world को divide करो, we have in general concept international relations में नॉर्थ की तरफ जितने भी कंट्रीज हैं वी आर हैविंग द डेवलप्ड कंट्रीज एंड साउथ की तरफ वी आर हैविंग डेवलपिंग कंट्रीज. साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो एक जनरली टेंडेंसी है जिसे हम लोग कहते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन. साउथ साउथ कॉपरेशन जहाँ पे द डेवलपिंग कंट्रीज come together with other developing countries to solve the problems which are specific to developing economies. तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साथ आए. उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फॉर एग्जांपल ऑन वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इन्हें हटा देना चाहिए. एंड टू रिमूव दैट वी आर हैविंग एन कंसेप्ट नोन एज कंपल्सरी लाइसेंसिंग. कंपल्सरी लाइसेंसिंग. अब क्या है कंपल्सरी लाइसेंसिंग? कंपल्सरी लाइसेंसिंग वो क्राइटेरिया है जहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट चाहे दे कैन प्रोवाइड अ रिलीफ. वो चाहे तो एक छूट दे सकते हैं कोई थर्ड पार्टी को, कोई दूसरे पार्टी को कि जो पैटेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, पैटेंटेड टेक्नोलॉजीज है, उसका वो उपयोग करे. ओके, रैदर टेकिंग, अगर आप कोई पैटेंटेड मेडिसिन लेना चाहे तो आपको पैटेंटेड ऑथर से परमिशन लेना होता है, बाकायदा उनको पैसा देना होता है. ओके, सो कंपल्सरी लाइसेंसिंग में गवर्नमेंट अगर चाहे फॉर द सेक ऑफ द पीपल, अगर वो गवर्नमेंट देखता है कि द नॉर्मल मासेस आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट मेडिसिन और द पैटेंटेड मेडिसिन इज नॉट कमिंग टू द मासेस फॉर द यूज, देन गवर्नमेंट कैन इशू कंपल्सरी लाइसेंसिंग. अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू ट्रिप्स. नाउ ट्रिप्स में क्या है? ट्रिप्स वहाँ पे वी आर हैविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपल्सरी लाइसेंसिंग छूट. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के माने तो वैक्सीन्स और काफ़ी जो एसेंशियल मेडिसिन है कोविड के टाइम पे, दिस इनिशिएटिव केम बैक इन अक्टूबर 2020. ओके, तो हम लोग इंडिया और साउथ अफ्रीका के माने तो ये सब चीज़ों में हम लोग को छूट मिलनी चाहिए. ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से छूट मिलनी चाहिए ताकि ये आम लोगों तक पहुँचे. बट अगेन इशू कम्स टू दी डेवलपिंग एंड डेवलप. इसमें भी डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं यूके, यूएस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने कहा नो. सो अगेन दे आर हैविंग सिविल सोसाइटीज आर देयर और उसे कम्पीट करने के लिए यूएस ने कहा ओके वी कैन हैव. कुछ हद तक उन्होंने प्रपोजल्स को माना, बट अगेन इट वाज नॉट एन कंप्लीट सक्सेस. अभी भी हम लोग का जो डिमांड था इट वाज वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स, जबकि जो बन के आया इट वाज ओनली फॉर वैक्सीन्स. ओके, बाकी सबको उन्होंने अवॉइड कर दिया. और साथ ही साथ ईयू की माने तो ईयू ने फिर अपना चलाया एंड वी हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रपोजल्स. फिर देयर वाज एन ब्रीफ डिस्कशन बिटवीन द ईयू एंड इंडिया who was the producer of this proposal, and finally what came out is directly opposite, is counterproductive to what India intended. Okay, what they made is more stringent rules on compulsory licensing, though it was a failure of developing economies here.
Second is the ask of public stockholding for food security. What is food security? Now, food security, we are having a very big definition of food security. But for the general understanding, food security मतलब जहाँ के masses को ज़रूरत के टाइम पे for the people, ज़रूरत के टाइम पे उनको अपने requirements के हिसाब से nutritious और safe food मिल जाए, इसे कहते हैं food security. Fine. अब economies like India, developing economies like India generally have public stock holdings. हम लोग stock hold करके रखते हैं for maintaining food security, and it is something which is crucial for democracies like India, okay, for public welfare. But again there was issues here, and even though we were having a much more relatively much more you could say relatively कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ इसमें, हम इस प्रपोजल्स में हम लोग की तरफ में, बट आफ्टर दैट ऑल्सो इट वाज कंप्लीट फेलियर. जो इंडिया इंटेंड किया अपने सेफ में अपने सेक के लिए, दैट वाज नॉट समथिंग विच वी फाउंड इन द फाइनल डिटेल्स. ओके, सो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स पे कोई रिजल्ट नहीं आया, सो इट वाज अगेन ए फेलियर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज हियर. थर्ड वन वाज अ राइट टू टैक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस. ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि ओवरनाइट आया है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस फॉर एग्जांपल मूवीज़ जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, उस पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज़ लगा सकते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस है, इस पे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाने की बात थी, उसमें मोरेटोरियम था, मतलब रोक था. और ये रोक कभी आजकल में नहीं, ये दिस वाज देयर फ्रॉम 1998. जब इंटरनेट एक नया चीज़ था, तब से ही कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस वाज स्टॉप. ओके, देयर वाज एन मोरेटोरियम ऑन दैट, एंड ओवर द इयर्स हर 2 साल में जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुए, तो वो जो मोरेटोरियम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया. ओके, बट अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज चाहते हैं कि नहीं, वी शुड इम्पोज कस्टम ड्यूटीज़ ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस. आंकड़ों की माने तो 2017 और 2020 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 49 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पे अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते, तो वी कुड हैव अर्न 50 बिलियन. We could have earned 50 billion USD. So this amount is not something small. Okay, it could be of a great use for an economy like India. तो यहाँ पे एक मोरेटोरियम लगाना, it's against the welfare of the people. It's against the goodness, public welfare, public governance. Okay, and that is why India is against this. पर again इसमें कोई conclusion नहीं आया. It was again a failure. चौथा इशू इज़ फिशिंग सब्सिडीज़. अब अगेन फिशिंग सब्सिडीज़ आप ओवर द ईयर्स आप सुने होंगे. देयर इज़ इशू ऑफ ओवरफिशिंग, देयर इज़ इशू ऑफ अनरेगुलेटेड फिशिंग, इलीगल फिशिंग. इसको कर्ब करने के लिए WTO में उन लोग ने डिस्कस करके, एंड दे मेड स्पेसिफिक कर्ब्स, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन सब्सिडीज़, सो टू एलिमिनेट इलीगल फिशिंग, सो टू एलिमिनेट ओवरफिशिंग. But again that would prove counterproductive for countries like India. इंडिया में जहाँ पे छोटे मोटे फिशर्स हैं, उनके लिए that curbing, that stripping of subsidies could prove harmful. Okay, and that is why India was against this. But again, more or less, it was again I could say the decision on fishing and fishing subsidies and electronic transmissions was not at all mentioned. Okay, but इसका हार कंपैरेटिव टू ट्रिप्स वाज वेरी लेस. ओके, तो ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स में जो अपने इंडिया और साउथ अफ्रीका ऐसे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की जो हार है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शोज़ द लेकुने, दैट शोज़ द इनकैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO फॉर द वेलफेयर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़. ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ डिजिटल लेयर्स of indigeneity. Now this article is very important. क्यों ये important है? It is important to show कि जो डिजिटाइजेशन का जो ट्रेंड चला है, जो डिजिटाइजेशन का जो क्रेज़ चला है गवर्नमेंट्स में, that could also prove counterproductive sometimes. Okay, डिजिटाइजेशन में काफ़ी कुछ issues हो सकते हैं which may be counterproductive, which may be harmful for the one who are accepting those. So let's see.
यहाँ पे the author has basically mentioned two issues. The one is ICDS, Integrated Child Development Scheme, and the second is NMMS, okay, National Mobile Monitoring Scheme. अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी साल से है, इनफैक्ट 1975 से है, एंड टू बी एग्जैक्ट ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम है, ओके, एंड दिस स्कीम्स has made India to receive a lot of accolades at various forums. Okay, so this is one of the important schemes. और ये सिर्फ जस्ट जनरल स्कीम ही नहीं, इसको एक लीगल बैकअप भी मिला है बाय NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ओके, सो इसको एक लीगल बैकिंग भी है ICDS. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितने भी न्यूट्रिशन स्कीम्स है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे 0 to 6 years of child plus lactating mothers plus pregnant. ये 3 कैटेगरीज के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, दैट वाज द बेसिक एम, दैट इज द बेसिक एम ऑफ ICDS. अब क्या हुआ कि जितने भी न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्कीम्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने लाया पोषण ट्रैकर. ये क्या है? इट्स बेसिकली काइंड ऑफ ऑनलाइन मैकेनिज्म जहाँ पे आप टारगेट्स चेक कर सकते हो कि ओवर द ईयर्स ऑन एन रियल टाइम कितने टारगेट्स अचीव हुए, कितने टारगेट्स अचीव नहीं हुए. एट द सेम टाइम ऑथर ट्राइज टू डिबेट हियर दैट ICDS जैसे स्कीम्स जहाँ पे 0 to 6 year ऑफ चिल्ड्रन है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम रखा, गवर्नमेंट ने एक ऐसा नोशन रखा जहाँ पे ये जो चिल्ड्रन से उनको आधार कार्ड प्रोवाइड करना था टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ ICDS. अब ऑथर की किए हुए स्टडीज़ की माने तो 0 to 6 year ऑफ चिल्ड्रंस में 3/4, एक्चुअली 0 to 5 years ऑफ चिल्ड्रंस, 3/4 ऑफ चिल्ड्रंस ये एज ग्रुप में दे डोंट हैव आधार कार्ड्स. अब 3/4 ऑफ चिल्ड्रंस जो है इस एज ग्रुप के, उनके पास आधार कार्ड ही नहीं है. इफ गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट दे शुड नीड आधार कार्ड, सो दे वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स. दिस आई एम राइट. अनदर व्यू इज दैट CCS जो कि प्रोवाइड करता है सिस्टम्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो कहता है कि 42 to 46% ऑफ द टाइम्स जब आप बायोमेट्रिक्स यूज़ करते हो तो 42 to 46% टाइम्स आपका नहीं होता है फर्स्ट टाइम. देयर आर लॉट ऑफ लेकुनेस इन द टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ इश्यूज इन द टेक्नोलॉजी. अब इस केस में जहाँ पे 3/4 ऑफ द चिल्ड्रंस के पास आधार कार्ड नहीं है और 40 to 46% ऑफ द टाइम पहली बार बायोमेट्रिक्स काम नहीं करता, तो वहाँ पे आधार कार्ड को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मानना, दैट वुड मीन टू डिप्राइव द फैसिलिटीज, डिप्राइव द राइट्स ऑफ दिस पीपल. ओके, सो दैट इज समथिंग विच द ऑथर आर्ग्यूज कि यहाँ पे आधार कार्ड बताना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्रिविलेंस देना ओवर द वेलफेयर ऑफ द पीपल मे प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव. इसी को एम्फेसिस करने के लिए द ऑथर हैज़ ऑल्सो मेड अनदर एग्जाम्पल विच इज़ NMMS. नाउ ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मनरेगा में जो आदमी लोग हैं, इट इज़ एन अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, तो इट कीप्स ए ट्रैक ऑफ द अटेंडेंस ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल अटेंडेंस में सुबह शाम आपको जब आप काम आते हैं और जब काम के बाद वापस जाते हैं तो आपको अटेंडेंस लगाना होता है ये सॉफ्टवेयर में. ओके, एंड इट वाज मेड फ्रॉम ए नोबल कॉज, टू बी वेरी फ्रैंक, एक नोबल कॉज था इसमें. ओके, इट वाज मेड ऑन नोबल कॉज कि यहाँ पे यू कुड फाइंड अ रियल टाइम डाटा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं. ओके, सो गवर्नमेंट कुड know how much effective the मनरेगा स्कीम इज़. बट द इशू इज़ दैट यहाँ पे मनरेगा जैसे स्कीम्स में ज़्यादातर जो काम्स होते हैं दे डू नॉट टेक 9 to 5. छोटे मोटे काम्स, फॉर एग्जांपल कैनाल बनाना या गड्ढे खोदना, नाले साफ़ करना, दैट सॉर्ट ऑफ वर्क्स इज़ समथिंग विच मनरेगा डज. और ऐसे काम में द ऑथर आर्ग्यूज कि ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोग को वापस काम ख़त्म करके आइदर शाम तक रुकना पड़ता है
या वापस आना पड़ता है. एंड इट मेक्स दम रेस्पॉन्सिबल, एंड इट मेक्स दम it kind of deprives the dignity of those people. इसी को स्ट्रेस करने के लिए he also tells what are the issues. Issues क्या है? The first issue is the sense of being constantly watched. The author tells कि when there is a sense that we are being constantly watched by some others, we are having a sense of fear. And that sense of fear could decrease the efficiency of the work which we are doing. So this proves counterproductive. Second is the power asymmetry. क्या है power asymmetry? Between the rights, जो लोगों को, जिन लोगों को rights चाहिए, okay, the right bearers and the government. जिन लोगों के पास rights है, उन लोग को और डिप्राइव किया जा रहा है उनके राइट से, बिकॉज दे आर हैविंग अ कॉन्स्टेंट फियर. दे आर मेड टू मोर स्क्रूटिनी बाय द गवर्नमेंट. सो इट्स क्रिएटिंग अ मोर पावर एसिमेट्री बिटवीन द गवर्नमेंट. इट्स गिविंग मोर पावर टू द गवर्नमेंट. सो इट्स काइंड ऑफ डिप्राइविंग द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ दिस पीपल, जिनको ये राइट्स मिलना चाहिए. थर्ड, एज आई टोल्ड, इट इरोड्स द डिग्निटी. जब आप उन लोगों को ज़्यादा स्क्रूटनाइज करते हो, जब आप यू कीप कंटिन्यूसली पुट अ scheme of fear, put a sense of constantly being watched, put a sense of fear in them, you erode them from dignity. And this is against something which the government, which the Indian government or the Indian constitution stands for. तो generally कहा जाता है कि e-governance में it is not the E which you should focus, it is the governance which you focus, and E is just to facilitate or add on to the governance. So rather than having a craze over the E, the electronics, the digitization, you should have a thought, you should have a plan for increasing the governance. And with that we finished these two articles. I hope that you had a general overview of these two articles. These are basically important to increase your scope of understanding of these topics. For example, जब आप UPSC में बैठते हो, when you write mains perspective, so you need to understand, you need to have a multifaceted approach towards the answer. And this type of topics increases, this type of topics helps in creating that multifaceted approach. So I hope that you understood this analysis. Thank you.